بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز اپنا قبلہ درست کر لیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ عوام کو منافع خوروں کے چنگل سے بچانے کے لیے انتظامیہ کا احسن اقدام۔ گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر ملتان شان الحق نے ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں گوہر رحمان۔ ملتان ڈویژنل انتظامیہ کا بڑا اقدام۔ کورونا سے متاثرہ شہریوں کو ماہ رمضان میں مافیا سے بچانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ کمشنر نے مہنگائی روکنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ڈویژن کے چاروں ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ رمضان کے دوران کسی بھی قسم کی منافع خوری ذخیرہ اندوزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے ہمیں اس کے لیے دن رات کام کرنا پڑے، لیکن ہم تمام جو اس پہ جو وائلیٹرز ہوں گے ان کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔ کمشنر شان الحق کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف جنگ کے ساتھ عوام کو سستے داموں راشن کی فراہمی بھی ترجیح ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے مرتکب افراد جیل میں قرنطینہ بھگتیں گے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مہنگائی روکنے کے لیے افطاری سے قبل چھاپے ماریں۔ منافع خوروں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ کوئی بھی شخص اس مغالطے میں نہ رہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرونا کی وبا کے اندر بزی ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا لے گا۔ ہماری ٹیمز، ہمارے ادارے، ہمارے محکمے جو ہیں فولی اویئر ہیں۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کے نرخ واضح آویزہ کیے جائیں۔ ضلعی حکام منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی سخت مانیٹرنگ یقینی بنائیں۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ احساس کفالت پروگرام کے ذریعے 144 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ جنید انور کی رپورٹ۔ سرکٹ ہاؤس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایک نئی ایپ متعارف کرائی ہے۔ مختلف فارن آفس کے 117 افراد رابطے میں ہیں۔ اس بحران سے پوری دنیا دوچار ہے۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ فارن آفس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک بہت بڑا اللہ کے فضل و کرم سے قدم اٹھایا اور ایک نئی ایپ انٹروڈیوس کی جس کا نام ہے FM ڈائریکٹ۔ اس ایپ کے ذریعے آج فارن آفس کے جو 117 مشنز ہیں دنیا میں اور 88 ممالک میں ہیں وہ پھیلے ہوئے، وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز جان خطرے میں ڈال کر فرنٹ لائن پر ہیں۔ صوبائی وزیر صحت اور سیکٹری ہیلتھ ملتان کا دورہ کر کے ڈاکٹرز کی مشکلات دور کریں۔ منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کہ مہربانی فرمائیں کہ ملتان کی جو ڈاکٹرز کی دقت ہے اس پہ فی الفور توجہ دیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر مہربانی فرما کے ملتان کا ایک چکر بھی لگا لیں تو اس سے ان ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ ہم کورونا اور بھوک سے لڑ رہے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ 9% کرنا اچھی خبر ہے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ باہر پھنسے افراد کو لانے کے لیے پروازیں آ رہی ہیں۔ سیکٹری ہیلتھ لاہور سے باہر نکلیں، یہ تنقید کا نہیں تعمیر کا وقت ہے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے لیے 1000 N95 ماسک اور کٹس وائس چانسلر اور MS نشتر اسپتال کے حوالے کی۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ علماء کے ساتھ اجلاس میں 20 نکات پر اتفاق کر لیا گیا۔ نماز تراویح کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسجد کے احاطے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، اگر کچا، یہ تراویح کے اعتبار سے بھی ہے، فرائض کے اعتبار سے بھی ہے، جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیائے صحت نے اس کو اپنایا ہے۔ اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں وہ سب ویسے ہی جائز ہیں، مگر اب ہم سب مہر لگا رہے ہیں سب لوگ مل کر اس بات کے اوپر کہ یہ ان اصولوں کی پابندی کر کر یہ کام کیے جائیں گے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں، اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جو گفتگو قریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریز کیا جائے، حالات اس بات کے متقاضی ہیں۔
जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हो वहां हॉल के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। छठा नुक्ता है, ये पिछले इत्तेफाक का भी कंटिन्यूएशन है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह के मरीज मसाजिद में और इमाम बारगाहों में नहीं आए। जनूबी पंजाब कोरोना के खिलाफ जंग जीतने लगा। मुजफ्फरगढ़ रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में 40 मरीज सेहतयाब करार हुए। बखर में 55 अफराद ने कोरोना वायरस को हरा दिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए कोरोना वायरस से मुतालिक अच्छी खबर आ गई। तुर्की अस्पताल में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 40 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों में डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी डॉक्टर भी शामिल है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी अच्छी खबर है। गुज़िश्ता रोज 35 मरीज सेहतयाब हुए थे और आज मजीद 5 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि तुर्की अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 117 रह गई, जो कि तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर भक्कर आसिफ अली फरूख का कहना था कि कोरोना टेस्ट मनफी आने पर 55 अफराद को अपने घरों में रवाना कर दिया गया। मुद्दत क़याम के अख्ताम पर मनफी टेस्ट आने पर घर जाने की इजाजत दी है। डीसी भक्कर के मुताबिक 55 अफराद का ताल्लुक मुल्क के 4 सूबों से है, जिनमें सूबा पंजाब के 3, बलूचिस्तान के 12, खैबर पख्तूनख्वा के 19, सिंध के 21 अफराद शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद कहते हैं कि बहावलपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 48 है, जिनमें से 6 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से घर चले गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद ने कहा कि बहावलपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 48 हो चुकी है, जिनमें से 6 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से घर चले गए हैं। अब सिविल अस्पताल में एक भी मुकामी शख्स कोरोना पॉजिटिव में ज़ेरे इलाज नहीं है। अभी तक हमारे पास 48 कंफर्म्ड केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के। उनमें से 6 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो बाकी तकरीबन 41 हमारे पास इस टाइम हैं और उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं कि जो तकलीफ का बायस बने, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को चले। बहावलपुर में दूसरे इलाकों से आने वाले तबलीगी अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि दोबारा नेगेटिव रिपोर्ट्स आने पर उन्हें घरों को भेज दिया जाएगा। इस वक्त 41 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जो तमाम तबलीगी अफराद हैं। इस वक्त तो ये हमारे पास सारे वो तबलीगी भाई हैं जो आए थे और इन सारों के फिर हमने टेस्ट किए। पूरे जिले में टेस्ट की कैंपेन चली और उनमें से जो पॉजिटिव हजरात हैं ये सिर्फ वही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़ेरे इलाज मरीज भी फिट हैं, जल्द ये भी सेहतमंद होकर अपने अजला को भेज दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर जद्दा से 223 मुसाफिरों को लेकर खुसूसी परवाज मुल्तान पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा से 223 मुसाफिरों को लेकर खुसूसी परवाज मुल्तान पहुंचे तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, मामले खुसूसी जावेद अख्तर अंसारी और MPA सलीम लाबर भी मौजूद थे। मुसाफिरों में एक बच्चा भी शामिल था। तैयारे का 22 रुकनी क्रू वापस सऊदी अरब रवाना हो गया। महकमे सेहत के काउंटर्स पर मुसाफिरों की रजिस्ट्रेशन की गई, जबकि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान की डिसइंफेक्शन भी की गई। किराए के अखराजात अदा करने वाले मुसाफिरों को होटलों में ठहरा दिया गया है। मुसाफिरों को करंतना मरकज मुफ्त रिहाइश फराहम कर दी गई हैं। लेबर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में कायम करंतना में सिविल डिफेंस के दस्ते, रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और स्टाफ को तैनात किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से करंतना मरकज के कमरों की डिसइंफेक्शन भी मुकम्मल कर दी गई। करंतना मरकज के कमरों और सड़कों को केमिकल मिले महलूल से धो दिया गया है। मुसाफिरों के कोरोना मेडिकल टेस्ट 48 घंटों के अंदर कर लिए जाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की और बैनुल अक़वामी प्रवाजों के लिए SOPs जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी और इलाकाई प्रवाजों के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। बैनुल-अक़वामी प्रवाजों को पाकिस्तान आने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने और जाने के वक्त और तारीख का तयन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। SOPs के मुताबिक मुसाफिरों के जहाज में बैठने से कबल पूरे जहाज में जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। जहाज को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक होने की तसल्ली खुद जहाज का पायलट करेगा। जहाज उड़ने से कबल मुतलका मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी जरासीम खुश स्प्रे का सर्टिफिकेट जारी करेगी। जहाज के दीगर दस्तावेजात के हमरा पायलट को ये सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। हर जहाज में कोरोना से बचाव के लिए किट्स, मास्क और ग्लव्स होने चाहिए। दूसरे ममालिक से आने वाले जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर और अमले की स्क्रीनिंग की जाएगी। जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर से कोरोना बचाव का हेल्थ सर्टिफिकेट पूरा करवाया जाएगा। जहाज के अंदर मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ नहीं बिठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। लैंडिंग से कबल तमाम मुसाफिरों के हेल्थ फॉर्म
मुकम्मल करवाए जाएंगे और उन्हें ASF स्टाफ से चेक करवाया जाएगा। मुसाफिरों और क्रू को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। अपनी पसंद के होटल में जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर होटल के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने के पाबंद होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए रोही के साथ। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी और अरकान असम्बली के नाम मुरासला भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आला ने मुरासले में कहा कि पंजाब के अवाम कोरोना से मुतासर हुए हैं। उम्मीद है कि अरकान अपनी तमाम तर कोशिशें मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए बरोए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं और पूरा यकीन है कि हम जल्द इस मरज पर काबू पाने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आला ने बताया कि डॉक्टर को हिफाजती लिबास, DSL-3 लैब्स के कयाम, कोरोना किट्स और दीगर जरूरी साजो सामान की फराहमी में पंजाब लीड कर रहा है, जबकि पंजाब जल्द रोजाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी की वजह से आम आदमी को मौशी तकालीफ का सामना है। इस सूरत हाल में अवामी नुमाइंदों की ये कौमी जिम्मेदारी है कि वो अपने अजला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ता रखें। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे जखीरा अंदोजों और गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीजा सर अंजाम दें। आजी पंजाब शोएब दस्तगीर का ऐसा इकदाम, पुलिस कोरोना पर ड्यूटी देने के साथ साथ मुस्तहिकीन की अमदाद के लिए फ्रंट लाइन पर है। आइए आपको दिखाते हैं। पुलिस की जानिब से 54 लाख की रकम 19 अजला को जारी कर दी गई है। अजला में बहावल नगर, राजनपुर, लैया, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल, भक्कर और मियावाली शामिल हैं। अजला में नकदी कम होने से राशन के लिए 12 लाख से कम रकम जारी हुई। IG ने यूनिट से इकट्ठा होने वाले फंड्स अजला को दिए हैं और मुतल्लिका अजला को फौरी राशन मुस्तहिकीन में तकसीम करने का हुक्म भी जारी किया। अब तक पुलिस 7 करोड़ से ज्यादा का राशन तकसीम कर चुकी है। डायरेक्टर API डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने महकमा सेहत ऑफिस मुल्तान के कोरोना वायरस कंट्रोल रूम का विजिट किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने मुल्तान का दौरा किया। उन्होंने महकमा सेहत ऑफिस में कोरोना वायरस कंट्रोल रूम का विजिट किया। DHO डॉक्टर मोहम्मद सलीम अकबर लगारी भी उनके हमरा थे। फील्ड में जाके हमने नीलकोट का इलाका देखा, उसमें हमने कोरोना का जो अनाउंसमेंट है उसको भी चेक किया, साथ में EPI का काम भी चेक किया। डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने यूनियन काउंसिल नीलकोट, सलीम कॉलोनी, ख्वाजा फरीद कॉलोनी का विजिट किया। यूनियन काउंसिल्स में IPI कोरोना बारे आगाही देने वाले स्टाफ का काम चेक किया, जबकि एक LHV को गैर हाजिर होने पर मुअत्तल भी कर दिया गया। जो हमारे वैक्सीनेटर अपनी अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं और साथ साथ हमने वहाँ पे रेलिवेंट जो वैक्सीनेटर थे उनका EPI का काम भी हमने चेक किया। डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने कोरोना वायरस कंट्रोल रूम में हिफाजती इकदामात का जायजा लिया। तमाम स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सजाद सयाल की जानिब से ताजरों की बाहमी रजामंदी से सूरजकुंड रोड पर हुकूमती अहकामात के मुताबिक दुकानें बंद करा दी गईं। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सजाद सयाल की जानिब से मुल्तान में ताजरों की बाहमी रजामंदी से सूरजकुंड रोड पर दुकानें बंद करा दी गईं। सजाद सयाल का कहना था कि कानून का एहतराम सबको करना है, कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, हुकूमती अहकामात पर अमल किया जाए। हमें कानून का एहतराम कर रही है। लॉक जो लगा हुआ इस टाइम पाकिस्तान में या हमारे शहर में, ये एहतियाती तरबीब है। एक हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, बच्चों की सेहत का भी ख्याल करना है और इन्होंने बाहमी रजामंदी से दुकानें बंद की। ताजरों का कहना था कि इन्हें कुछ वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, कुछ दुकानें दिन में और कुछ शाम में खोली जाएं। बाहमी रजामंदी से हमने ये फैसला किया कि हम लोग अपनी शॉप्स बंद करते हैं। हम लोगों ने अपनी शॉप्स भी बंद कर दी, लेकिन हुकूमत से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी थोड़े मखसूस वक्त के लिए हमें कुछ ऐसा टाइम दिया जाए जिसमें हम कुछ लोग डे में और कुछ लोग नाइट में अपने वर्क को जारी रखें, ताकि हमारा जो है ना वो घर का सिलसिला, रोजगार का सिलसिला भी चलता रहे। ताजिर बरादरी का मजीद कहना था कि लॉकडाउन की वजह से छोटा ताजिर बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि छोटे ताजिर के लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में लॉकडाउन में नरमी के बाद गाड़ी मैकेनिकों और कारीगरों की किस्मत चमक उठी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में मैकेनिकों को काम करने की इजाज़त मिलने के बाद ऑटो मार्केट में शहरी अपनी गाड़ियां ठीक कराने पहुंच गए। मार्केट में मुरम्मती काम की गाड़ियां आने के बाद मैकेनिकों की किस्मत भी चमक उठी। कारीगरों का कहना था कि कोरोना की वजह से किसी भी किस्म का रोजगार नहीं मिल रहा था। सर मजबूरी है,
गरीब मजदूर हैं, झाड़ी कमाने वाले हैं, किसी की 300 झाड़ी है, कितने गरीब हैं, किनसे पूछे 200 तो 300 रुपए झाड़ी है, कितने दिनों से इनके सबकी आप जेबें चेक कर लें, किसी के पास आपको 10 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। कारीगरों का कहना था कि लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद था, जिसकी वजह से परेशान थे। अब रोजगार शुरू हो गया है तो कुछ बेहतरी आई है। काम वगैरह पहले नहीं थे तो जिसकी वजह से लोगों ने तंगी में आकर शॉप्स भी खोली हैं और लोगों की जरूरियात भी थी, तो उन्होंने इस वजह से दुकानें खोली। नहीं तो पहले तो हुकूमत के हिसाब से ही हम चलते रह गए हैं जैसा भी हुआ है। कारीगरों ने हुकूमत से उनके लिए भी रिलीफ पैकेज के ऐलान का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। यहाँ आपको बताएं कि रहीम यार खान में मरकजी अंजुमन ताजरान ने तमाम दुकानों को खोलने का मुतालबा कर दिया। जिले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम का कहना है कि कारोबार बंद होने से लोगों की मदद करने वाले अफराद अब खुद परेशान हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। जिले अंजुमन ताजरान रहीम यार खान के जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल सलाम ने तमाम कारोबार और दुकानें मखसूस औकात में खोलने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि कारोबार न होने से इससे वाबस्ता छोटे और बड़े दुकानदार सब मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार तमाम हिफाजती इक़दाम को अपनाते हुए कारोबार करेंगे। हमें कुछ टाइम के लिए कुछ SOPs दे के काम करने का कुछ टाइम दें ताकि लोग अपने घर का चूल्हा जला सके। ये हमारे जितने भी ताजर हैं, मुझ समेत मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए आसानियां थोड़ी सी पैदा करें। हम वो सारे SOPs को फॉलो करेंगे जो आप हमारे ऊपर लगाएंगे। ताजर तंजीमों का कहना था कि हुकूमत ने चंद कारोबार करने की इजाजत दी जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। दर्जी, इलेक्ट्रीशियन, सेंट्री का काम करने वालों को इजाजत है, मगर उनको सामान देने वाली दुकानें बंद हैं। कपड़ा बंद है, दर्जी खुला है, इलेक्ट्रिक बंद है, इलेक्ट्रीशियन खुला है, प्लम्बर खुला है, सैनिटरी बंद है। इस तमाम रेटेड शोबों को खोला जाए और जब में ताजरान की जो दुकानें बंद हैं, जो शोबे बंद हैं, इनको फिलफौर खोलने का ऐलान किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जो 3-4 ट्रेड बंद हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों की रोजी कर सकें। मरकजी अंजुमन ताजरान ने जिले इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अंजुमन ताजरान के साथ मुश्तरका लाइहा अमल तय करके हिफाजती इक़दाम अपनाकर तमाम बाजारों को खोलने की इजाजत दे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। कैंसर के मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। अद्वियात की फराहमी का मसला भी हल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब ने नए मुआहदे के लिए 1 अरब 35 करोड़ 55 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। चंद माह कबल वज़ीर आला पंजाब नए MS नोआर्ट्स फार्मा पाकिस्तान से नए मुआहदे का ग्रीन सिग्नल दिया था। थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट के बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 1 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी थी। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक MS नोआर्ट्स फार्मा पाकिस्तान से अब कैंसर के अद्वियात की फराहमी का मुआहदा 2023 तक किया जाएगा। मुआहदे और वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए महकमा खजाना को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। ज़राए ने बताया कि 2014 में MS नोआर्ट्स फार्मा पाकिस्तान से मुआहदा किया गया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट में साबिक दौरे हुकूमत के मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार होने पर अब वज़ीर आला पंजाब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है। अभी आपको बताते हैं कि सालाना गंदम खरीदारी हदफ में इजाफे के ऐलान का मामला। हदफ में 5 लाख मैट्रिक टन इजाफे के लिए महकमा खुराक मजीद कर्ज नहीं ले सकेगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा खुराक ने सालाना गंदम खरीदारी हदफ में इजाफे के लिए एक अहम फैसला किया। हदफ में 5 लाख मैट्रिक टन इजाफे के लिए महकमा खुराक मजीद कर्ज नहीं लेगा। महकमा इजाफी गंदम की खरीदारी महकमाना सेविंग से ही करेगा। हर साल गंदम खरीदारी मुहिम के लिए मुख्तलिफ बैंक से कर्जा लिया जाता है। रवा साल भी 45 लाख मैट्रिक टन गंदम के लिए बैंकों से कर्ज लिया गया। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की जानिब से हदफ में 5 लाख मैट्रिक टन इजाफा किया गया। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद हदफ में इजाफे पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। महकमा खुराक के मुताबिक सालाना हदफ में इजाफा मौसमी हालात पर भी मुनहसर है। बारिश और जालाबारी से गंदम कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। डेप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीम मियां मंजूर अहमद का कहना है कपास की ड्रिल के जरिए की जानिबली काश्त को दोबारा काश्त करना पड़ सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। मामूली मौसमी हालात भी फसलों पर असर अंदाज हो रहे हैं। हालिया बारिश और ज़ालाबारी से गंदम और कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां मंजूर अहमद का कहना है कि किसान गंदम की फसल की गिहाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल करें। मेरी काश्तकारों से यही गुजारिश होगी कि वो जदीद मशीनरी इस्तेमाल करें, वो हाथ वाली कटाई को ना उस तरफ जाएं, क्योंकि मौसमी हालात इस तरह के हैं कि कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश है, तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है कंबाइन हार्वेस्टर वैध मशीन है
जिससे बहुत जल्दी हम अपनी फसल को संभाल लेते हैं। मियां मंजूर अहमद का कहना है कि कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल से गंदुम का दाना फौरी तौर पर संभाला जा सकता है। किसान गंदुम की ढेरियां ऊंची जगह पर लगाएं और तरपाल का बंदोबस्त रखें। कपास की ड्रिलिंग के जरिए की जाने वाली काश्त शदीद मुतासिर हुई है। ड्रिल के जरिए की जाने वाली काश्त दोबारा करनी पड़ सकती है। किसी फसल के लिए भी ये फायदेमंद नहीं है। कपास की बिजाई लेट हो रही है, जो अगर बिजाई हो चुकी थी, अगर वो ड्रिल स्विंग थी तो वो दोबारा करनी पड़ जाएगी। अलबत्ता खेलों वाली जो है उसमें अगर वो पानी लगा लें तो उसमें वो करंट नहीं बनेगा, वो जर्मिनेशन उसकी हो जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां मंजूर अहमद का मजीद कहना था कि ज़ाला बारिश से गंदुम की पैदावार मुतासिर हुई है। बारिश के बायस कटाई ताखीर का शिकार हुई और दाने का वजन मुतासिर होगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा रज़ा मलिक, मुल्तान। बहावलपुर समेत पूरे सराकी वसेब में गंदम की कटाई जारी है। दूसरी जानिब कपास की काश्त का मरहला भी शुरू हो गया। अतहल अशारी की रिपोर्ट। गुज़श्ता साल बारिशों की वजह से कपास की फसल मुतासिर हुई, जिसकी वजह से कपास का अच्छा बीज भी नायाब हो गया। पंजाब हुकूमत ने रवां साल निस्बतन कम मेयार के बीज काश्त करने की इजाजत दे दी है। महकमा ज़राअत का कहना है कि बीज के कम उगाव की वजह से काश्तकारों को बीज की मिकदार बढ़ाना होगी। इस दफा जो है बीज उतना बेहतर क्वालिटी का नहीं है जो पिछले सालों में होता था। हम काश्तकारों से यही कह रहे हैं कि जो बीज 75% जर्मिनेशन वाला है डीलिंटेड, वो 6 किलो काश्त करें, और अगर वो कम है तो उसके हिसाब से वो शरह बीज वो फी एकड़ बढ़ा ले। नवीद असमत काहलू ने कहा कि रवां साल 2 लाख एकड़ के बीज पर सब्सिडी भी फराहम की गई है, जबकि खादों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार बुआई से पहले बीज के उगाव का तनासुब चेक कर लें। 2 लाख एकड़ पे जो है ना वो सीड पे सब्सिडी दी जा रही है कपास के बीज पे, और इसके अलावा खादों पे सब्सिडी है, पीबी रोप से सब्सिडी है, और काश्तकारों को कपास की बेहतर पैदावार के असूल के लिए यही कहा जा रहा है कि इसे टाइमली काश्त करें। रवां साल बारिशों के बायस गंदम की कटाई ताखीर का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से कपास की बरवक्त काश्त भी मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात ने गंदम खरीदारी सेंटर पर लगे पैमाने चेक करने शुरू कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गंदम खरीदारी सेंटर्स पर पैमाना जात कुंदा की चेकिंग के अहकामात जारी कर दिए गए, जिसकी जिम्मेदारी मुल्तान के महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात को सौंप दी गई है। अहकामात के बाद मुल्तान के महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात ने टीमें तश्कील दे दी हैं। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात के अफसरों ने गंदम खरीदारी सेंटर्स पर चेक का अमल शुरू कर दिया गया है। हमारे हेड ऑफिस है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, सख्त हिदायत हैं कि कंडे को आप सही रखें तो जो है ताकि नाप तोल बिल्कुल दुरुस्त मुहैया हो सके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अवैस मुमताज अंसारी का कहना था कि अफसरान पैमाना जात में कम नाप तोल पर सेंटर सील भी कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनको उसी हवाले से जो पेमेंट है वो भी सही तरीके से हो सके। पूरा नाप तोल इस हवाले से बहुत सख्त हिदायत हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से भी और हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से भी। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात जिला भर में कायम गंदम खरीदारी सेंटर्स पर रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग करेंगे, ताकि सेंटर्स पर किसान को इसकी गंदम की मिकदार के मुताबिक रकम मिल सके। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से सीड कंपनियों पर गंदम की खरीदारी की पाबंदी से नया बहरान पैदा होने का खदशा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने सीड्स कंपनियों को खरीदारी हदफ के हसूल तक गंदम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की है, जिस पर सीड्स कंपनियों की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया गया है। चीनी और आटे के बहरान के बाद नया बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। सीड एसोसिएशन के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां आमिर शहबाज का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। सीड कंपनीज के नुकसान की बात नहीं, ये मुल्क के नुकसान की बात है। अब हैरान है कि चीनी और आटे के जो बहरान आया है उससे भी हुकूमत वक्त ने कोई सबक नहीं सीखा। मियां आमिर शहबाज का मजीद कहना था कि सीड कंपनियां मखसूस काश्तकारों से मखसूस वैरायटी खरीदती हैं। 1 माह बाद हुकूमत की जानिब से इजाजत मिल भी गई तो बीज तैयार करने के लिए फसल ही दस्तयाब नहीं होगी। सीड कंपनीज आम फार्मर से गंदम नहीं खरीदती, इनके रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं। एक मखसूस क्रॉप ही है जो सीड के लिए इस्तेमाल होती है। नुकसान ये है कि आटे चीनी के बहरान के बाद जो अगले साल के लिए कह लें आने वाली फसल के लिए जो एक नया बहरान है जिसे हुकूमत खुद तैयार कर रही है, वो सीड की अवेलेबिलिटी का इशू हो जाएगा।
सीड कंपनियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत सीड्स कंपनियों को आइंदा फसल के बीज की तैयारी के लिए गंदम की खरीदारी की इजाजत दी जाए। बर वक्त खरीदारी ना हुई तो आइंदा साल गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लौट के आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि मियांवाली में वजीर आजम कफालत प्रोग्राम के तहत बेशतर मुस्तहिक अफराद को नादरा ऑफिस की बंदिश और वेरिफिकेशन न होने के सबब रकम की अदायगी न हो सकी। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। पिपला में वजीर आजम कफालत प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बेवा खवातीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब मर्दो खवातीन को 12,000 रुपए के मैसेजेस भी मसूल होना शुरू हो गए हैं। नादरा ऑफिस के मुसलसल बंदिश के सबब बेशतर ऐसे अफराद जिनकी बायोमेट्रिक तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी, उनको रकम के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील पिपला उमर इम्तियाज विर्क का कहना था कि कफालत सेंटर पर नादरा काउंटर बनाए जाएं ताकि वेरिफिकेशन हो सके। 65% की जो रेशो है 70% तक वो मेल्स की है और 30-35% की जो रेशो है फीमेल्स की है। हमने हरनोली में एक काउंटर सेपरेट बना दिया है मेल्स के लिए और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिपला और कुनिया के लिए हम सेपरेट काउंटर बना रहे हैं। इसके लिए मेल्स के लिए वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 65% मर्द हजरात की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इजलास, डॉक्टर्स को इमरजेंसी फ्लू फिल्टर क्लिनिक और कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हिफाजती किट्स और मास्क फराहम कर दिए गए। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और सफाई वाले अमले को हिफाजती सामान न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हिफाजती किट्स खरीदी हैं। उनका कहना था कि सामान की कमी के बाइस पीपीई किट को इस्तेमाल के बाद जाया करने की बजाय बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जिला सदर डॉक्टर सादिक ज़िया का कहना था कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स की हिफाजत नहीं की जाएगी तो काम कैसे जारी रख सकेंगे। डायरेक्ट कोरोना को फेस कर रहे हैं और फर्स्ट लाइन सोल्जर्स हैं, बिल्कुल महाज पे हैं, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलना चाहिए। लिहाजा हमारी ये मुतालबा है इंतजामिया से कि वो पहले डॉक्टर्स की सेफ्टी को, डॉक्टर्स की हिफाजत को अपनाए ताकि डॉक्टर फिर आगे से आवाम को हिफाजत दे सके। सदर यंग कंसल्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शाह का कहना था कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड, इमरजेंसी और फ्लू फिल्टर को सामान मुहैया करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हमारे लोग आईसीयू के अंदर और एचडीयू बने हुए हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट कोरोना के लिए, उधर जो हमारे लोग हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज है। अगर आप उसको हर हफ्ते एक N95 देंगे तो वो उसके लिए इनफ नहीं होता कभी भी, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, डॉक्टर प्रोटेक्ट होगा तो वो जितने पेशेंट्स को देखेगा वो भी उनके लिए वो प्रोटेक्शन है। सदर बाइडीए डॉक्टर जुनैर आजम का कहना था कि शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले के टेस्ट फौरी तौर पर करवाए जाएं। डॉक्टर्स के प्रायोरिटी के ऊपर टेस्ट भिजवाए जाएं। जो जो डॉक्टर आइसोलेशन में या कोरोना वार्ड में काम करते हैं, आफ्टर रिलीविंग फ्रॉम द कोरोना वार्ड या इंटरेक्शन विद द पॉजिटिव पेशेंट, दे शुड बी टेस्टेड। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने वाले तिबी अमले के लिए अलहदा से करंतना मरकज और आइसोलेशन वार्ड बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। डिस्ट्रिक्ट सदर तहरीक इंसाफ तहसीन गर्देजी कहते हैं कि IMF पैकेज खुशाइंद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर तहसीन गुरदेजी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज खुश आइंद है। वजीर आजम की IMF के हवाले से बात को पूरी दुनिया में सराहा गया। इस बयान से एक बार फिर इमरान खान मुस्लिम उम्मा और गरीब ममालिक के लिए लीडर बनकर सामने आए हैं। जिस तरह की पॉलिसीज खान साहब और हमारी गवर्नमेंट बता रही है, मैं समझता हूँ कि इससे अवाम को फायदा होगा और ये पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया इसको। सिर्फ अब ये जो उन्होंने IMF से कर्जे माफ कराने की बात की, सारा कुछ इससे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बाकी मुल्कों को भी फायदा हो रहा है। और इस तनाजुर में इमरान खान साहब एक मुस्लिम उम्मा के उभरते हुए लीडर बन के निकले हैं। जिला सदर तहसीन गुरदेजी ने कहा कि सियासी मुखालफिन बराए मेहरबानी तनकीद न करें। ये कोरोना की बात पर सियासत करने का मौका नहीं है। हम उनके लिए सोने की सड़कें भी बना ले तो उन्होंने यही कहने का जी ये 2 नंबर सोना इसमें मिलावट है, तो ये उनका हक है, वो बात करते रहे। लेकिन तनकीद बराए
इस्लाह जरूर करें, तनकीद जो करते हैं वो उससे फिर वो तकलीफ होती है, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये मौका नहीं है। अवामी हलकों की बात करते हुए ज़िले सदर ने कहा कि इमरान खान की तमाम अवाम दोस्त पॉलिसियां होती हैं और अवाम उनको पसंद करते हैं, बस यही बात सियासी मुखालफिन को हजम नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में लॉकडाउन के बायस मजदूर अफराद परेशान हैं, कहते हैं रोजगार बंद है। माजूरी के बावजूद एहसास प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिल रही, ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान माजूर अफराद भी बेरोजगार हो गए। माजूर अफराद एहसास प्रोग्राम से मदद के तलबगार हैं। माजूर शख्स खिजर हयात का कहना है कि लॉकडाउन में दुकान का काम बंद होने से वो परेशान है। हुसैन के मार्केट में काम करता था, वो दुकानें बंद हैं, तो हम भी एक माह से बेरोजगार है। हमें भी किफालत कीजिए ताकि हमारा भी चूल्हा जल सके। हम आपसे अपील करते कि हमारा भी कुछ सोचा जाए। एहसास प्रोग्राम में शामिल होने वाले माजूर अफराद भी मदद के तलबगार हैं। माजूर अफराद का कहना है कि इन्हें ताहाल एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद ही नहीं मिली। मैं अपील करने आया हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, मामले ख़ुसूसी सानिया निश्तर साहब कि हम माजूर अफराद के लिए भी जो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी एहसास की हिफाजत की जाए ताकि वो भी अपने घर का चूल्हा जला सकें। माजूर अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इनके लिए भी अलग से खुसूसी इमदाद सेल कायम कर दिया जाए या घरों में इमदाद पहुंचाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। और बेरोजगारों की मदद के लिए मुल्तान पुलिस मैदान में आ गई। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार रिक्शा ड्राइवरों में राशन तकसीम किया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे महर इमरान। कल के जज्बे से सरशार मुल्तान पुलिस मैदान में आ गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान की जानिब से रिक्शा ड्राइवर्स और नादार अफराद में राशन तकसीम किया गया। आरपीओ में पुलिस लाइन में 300 से जायद रिक्शा ड्राइवर्स में आटा और अशिया खुर्दोनोश तकसीम की। इस मौके पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क, दस्ताने और हिफाजती सामान भी तकसीम किया गया। वो तबका है जो हमारी सोसाइटी का जो कि सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और रोज का रोज बेचारों की कमाई होती थी, और इनमें कई ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे जिन्होंने रिक्शे भी किराए पे लिए हुए हैं, और ये थे जिस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये थे। तो हम बड़े ममनून हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारे अंजुमन ताजरान का लोगों ने जिन्हें मिल के ये सारे 500 रिक्शे वालों की डिस्ट्रीब्यूशन किया राशन की महीने के लिए। आरपीओ का कहना था कि पुलिस क्राइम कंट्रोल के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कोशा है। आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से मदद कर रहे हैं। हम खुश हैं, चलो खर्चा राशन वगैरह मिल जाएगा, चलो घर का सर्कल चल जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रेडर्स के ताउन से रिक्शा ड्राइवर्स को राशन दिया गया, जिस पर उन्होंने मुल्तान पुलिस की खिदमात को सराहा। आरपीओ का कहना था कि अगले मरहले में मजीद राशन भी तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर SSP RIB मोहम्मद मासूम और CTO हुमा नसीब भी मौजूद थी। कैमरामैन हारून के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बहावलपुर पुलिस का अहसन इकदाम, शहर भर के 500 से ज्यादा रिक्शा ड्राइवरों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर पुलिस रिक्शा ड्राइवर्स का चूल्हा जलाने के लिए मैदान में आ गई। शहर भर के रिक्शा ड्राइवर्स में राशन तकसीम किया। DSP सिटी शफकत अता ने तमाम ड्राइवर्स को लाइनों में बिठाकर समाजी फासले की पॉलिसी पर भी अमल दरामद करवाया। पुलिस ने शहर भर के रिक्शा ड्राइवरों को 1 माह का राशन दिया। एहसन इकदाम पर रिक्शा ड्राइवरों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DSP सिटी शफकत नदीम अता ने कहा कि DPO सुहेब अशरफ के अहकामात पर रिक्शा ड्राइवरों के लिए राशन का बंदोबस्त किया गया। पुलिस ड्यूटी के साथ साथ खिदमत खल्क के जज्बे से भी सरशार है। जो साहिब हैसियत लोग थे उनसे और फिर पुलिस ने अपना फंड इकट्ठा करके हमने ये जो रिक्शा वाले हैं इनके लिए राशन का बंदोबस्त किया है। आज यहाँ पे हम फर्स्ट उसमें 569 जो लोग हैं उनको हमने बुलवाया है और 10 के करीब बेवगान इसके अलावा हैं, शामिल हैं। हम इनको यहाँ पे राशन तकसीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 माह का हम राशन इनको दे रहे हैं। DSP सिटी ने कहा कि मौजूदा हालात में रिक्शा ड्राइवर बराह रास्त मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब पुलिस के इस अमल से रिक्शा ड्राइवरों ने पंजाब पुलिस को भी सलाम पेश किया। उन्होंने अपनी तनख्वाहों से पैसे कटवा कर और इन अवाम के लिए इन्होंने अपनी फराइज सर अंजाम दिए हैं। हमारे पास इस पर खुशी, हम पंजाब पुलिस को सलामी पेश करते हैं। रिक्शा ड्राइवरों की दरख्वास्त पर DPO सुहेब अशरफ ने मुखैर हजरात से मिलकर 500 से जायद रिक्शा ड्राइवरों में राशन तकसीम किया। DSP सिटी ने कहा कि पहले मरहले में 1 माह का राशन तकसीम किया गया है। जरूरत पड़ने पर मजीद राशन का बंदोबस्त भी किया जाएगा। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए हेडलाइन।